Hello and welcome. You're watching our special on the Wrestling Dangal here on India Today because big development in that entire fiasco that was happening between the wrestlers as well as the administrators. If you thought you'd seen the end of it after WFI had fresh elections, there was a new president that was elected. Well, not quite, because today there was a twist in the tale. The sports ministry came up with a few rules that the new body had flouted, and as things stand at the moment, have suspended the Wrestling Federation of India. That's been the big story of the day here at India Today. For the next half an hour, we'll try and give you the background of this entire fiasco, as well as listen to the key personnel involved in this entire melee that is happening. Let me introduce the two guests that are joining us right now. Firstly, Sanjay Singh, the newly elected president of the Wrestling Federation of India, at least till a few hours ago, because now the body stands suspended. We'll be talking to Mr. Singh, who's speaking for the very first time after that announcement has come. We will also be joined by a former Olympic medalist at that, Yogeshwar Dutt, to give us a perspective of the athletes. We'll also be joined by another Olympic medalist in Vijender Singh. So we've got a power-packed guest lineup, but let me give you some breaking news that is coming in at the moment, and that is that Brij Bhushan Sharan, the earlier president, the ex-president of the Wrestling Federation of India, and the man that many thought was behind the current dispensation that took charge, will be meeting Home Minister Amit Shah after the Sports Ministry today announced the suspension of the Wrestling Federation of India. Remember, earlier in the day, he had also met the president of the Bharatiya Janata Party, that is Mr. JP Nadda, right after that announcement was made. And for those who have no idea as to what is Brij Bhushan Sharan still involved with in this entire fiasco, because remember, he's no more an elected member. He is a 6-time MP from Gonda. 5 times he's won that seat as a BJP MP, and also clearly the man who was instrumental in deciding how the votes went by during this Wrestling Federation of India elections that happened just a few days ago. So he's in the thick of things at the moment, clearly not taking things lying down, and will be meeting the Home Minister Amit Shah tomorrow, is what we are learning from our sources. Of course, as and when that meeting happens, we'll be bringing you all the latest right here on India Today. But without further ado, let's go to the man in the center of the storm at the moment, Sanjay Singh. संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टुडे से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है, और जो उनकी पूरी प्रेस रिलीज आई है, बड़े ध्यान से पढ़ी है मैंने, उन्होंने कहा है कि देखिए, आपने अंडर 15, अंडर 20 नेशनल्स अनाउंस तो कर दिए, लेकिन आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, जिसके बाद आप वो कर सकते हैं। तो यहां पर आपने जो नियम है उनका उल्लंघन किया है, इसलिए आपको सस्पेंड करते हैं। मेरा सीधा सीधा पहला सवाल यही है कि ये जो यूनिलैटरल जिसको कहते हैं डिसीजन, मनमानी का जो एक डिसीजन जिसे कहा जा रहा है, वो आपकी कमेटी, नई कमेटी ने लिया, जबकि एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं हुई थी। आपने ऐसा क्यों किया? सबको इसमें शामिल क्यों नहीं लिया जब ये डिसीजन लिया गया? जहाँ पे इलेक्शन हुआ, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ पे इलेक्शन हुआ वहाँ पे एग्जीक्यूटिव एडहॉक कमेटी ने जनरल बॉडी बुलाई थी। वहाँ इलेक्शन के बाद हम लोगों ने कहा कि इस मीटिंग को यहाँ एडजर्न करके होटल में करते हैं, और 24 स्टेट के डेलीगेट जो आए हुए थे, फिर उनके साथ बैठ करके पूरे स्टेट फेडरेशन के साथ बैठ करके मीटिंग हुई है, जहाँ पुराने अध्यक्ष जी को विदाई दी गई, उनका सम्मान किया गया, विदा किया गया उनको। उसके बाद इस वर्ष का अंडर 15 और अंडर 20 का कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था, तो सब लोगों ने डिसीजन लिया कि इसको करा दिया जाए, जिससे कि बच्चों का सर्टिफिकेट मिल जाए, बच्चों का भविष्य ना खराब हो। सबसे पूछा गया कि इसको सब लोग कराने के लिए सहमत हैं। सब लोगों ने रिटर्न में भी दिया है, सबने अपनी सहमति प्रदान की। 60 टर्म पीरियड 60 टर्म का था, तो सब लोगों ने कहा कि हम लोग के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नंदिनी नगर में एक टाटा का सेंटर है और एक साई का सेंटर है, 2 नेशनल एक साथ कराने के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। तो सब लोगों ने सहमति दी कि इसको वहीं पे करा दिया जाए।
सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया, न कि केवल मैंने अपनी मनमानी की है और मैंने स्वतः का ये निर्णय नहीं लिया। वो रिटर्न में सबका है, सबकी एफिडेविट भी उसके बाद आ गई है। संजय जी, आप कह रहे सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया है। सवाल तो ये उठता है ना कि क्या वो एजेंडा में था जब एग्जीक्यूटिव कमेटी मिली है? भाई एग्जीक्यूटिव कमेटी तो वहां पर मौजूद थी इलेक्शंस को लेकर। इलेक्शंस के बाद आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा ना, आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी को कि देखिए इस चीज के तहत यानी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम मिल रहे हैं। वो नोटिस तो आपको देना पड़ेगा, वो तो नियमों के आधार उसके नियमों के अगर आप के साथ चलेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, वो नोटिस देना वो नियम में है, लेकिन सारे लोग इलेक्शन के लिए सारी बॉडी वहां जुटी हुई, इकट्ठी हुई थी, इसलिए नोटिस की जो बात थी सबने उस पर अपनी सहमति की कि इसके लिए हम लोग मीटिंग कर लेते हैं, तब वो मीटिंग की गई। हाँ नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, पर देखिए एजेंडा में तो नहीं था ना। आप वहां मिले, जो सब बैठे थे वो तो इलेक्शंस के लिए आए थे। क्या आप आखिरी लम्हों में, आखिरी मोमेंट में क्या ये चीज ऐड कर सकते हैं एजेंडा में जब एग्जीक्यूटिव ना खराब हो उसके लिए पहलवानों का भविष्य खराब हो रहा था, उसके लिए सारे स्टेट फेडरेशन ने रिक्वेस्ट किया, इसके लिए वो मीटिंग करके उसको आगे बढ़ाया गया। वो वहां मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा भी गया है वो चीज। अच्छा, तो आप कह रहे हैं क्योंकि आपको भविष्य जो था पहलवानों का उसके ऊपर थोड़ी चिंता थी, लेकिन कई लोग तो कहेंगे ना, तो पहलवानों का भविष्य तो वैसे ही खराब हुआ है, वो तो सड़कों में बैठे इतने समय से अभ्यास नहीं कर पा रहे, तब क्यों नहीं? 9-11 महीने से कोई स्टेट मतलब कोई नेशनल नहीं हुआ, कोई कैंप नहीं लगा है, तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो रहा है। नहीं, वो तो सही है, लेकिन भविष्य तो कई रेसलर्स का खराब हो रहा था ना काफी समय से। भाई अगर पहले से रेसलिंग फेडरेशन, आप तो यूपी से हैं ही, मतलब आप प्रेसिडेंट भले ही अभी बने हो, लेकिन रेसलिंग से तो आपका पुराना नाता है। हम यूपी तो से नहीं, तब आपको हम यूपी से भी हैं, और मैं यूपी से भी हूं, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से भी हूं। तब तो और आप पे जिम्मेदारी बनती है। नहीं, तब तो आप पे और जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको भविष्य की जिम्मेदारी थी, इसीलिए बच्चों का भविष्य के इसी तो हम प्रेसिडेंट बनने के बाद ही तो बच्चों के भविष्य का कर सकते हैं, पहले हम कैसे कर लेंगे? अच्छा, तो ये मुझे बताएं, के बाद ही तो चिंता थी, और हमें नहीं, पूरे स्टेट फेडरेशन को थी। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने भविष्य को देखते हुए यह निर्णय लिया है, और आप कह रहे हैं कि आप मोदी जी के क्षेत्र से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, बनारस से भी है, आप रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े, उनके वोटर भी हैं, निर्णय तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ली है, आपके खिलाफ आप लोगों को सस्पेंड किया है। जब आप कह रहे हैं आपने रेसलर्स के भविष्य को लेकर ये निर्णय लिया, तो आपको क्या लगता है क्यों ये ऐसा निर्णय लिया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से? अब हम अपना पूरा सब कुछ बना करके स्पोर्ट मिनिस्टर से मिलेंगे, और सारे स्टेट की जो स्टेट फेडरेशन की लेटर है उसको लेकर के हम लोग मिलेंगे, अपना पूरा पक्ष उनके साथ रखेंगे, उनको कन्विंस किया जाएगा स्पोर्ट मिनिस्टर से मिल करके। क्या कन्विंस करेंगे, अगर आप हमारे दर्शकों को बताइए? बच्चों का भविष्य न, यही कहेंगे कि यही तो बता तो दिया हमने कि बच्चों के नेशनल के लिए। अच्छा, और आपको लगता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इन चीजों पे गौर नहीं किया होगा, इस चीजों पे ध्यान नहीं दिया होगा? क्योंकि सिर्फ ये जो नेशनल को लेकर उन्होंने एक यहाँ पर सवाल नहीं खड़ा किया है। अगर आप प्रेस रिलीज ध्यान से पढ़े, उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी जो नई फेडरेशन बनी है उसमें साफ तौर पर ऐसा लग रहा है जो पिछले सदस्य जो पहले जुड़े हुए थे अब नहीं जुड़े हैं, जिनके खिलाफ काफी संगीन आरोप लगे हुए हैं, जिसकी अभी जांच चल रही है, वो भी, उनका भी कहीं ना कहीं छाप यहाँ पर नजर आता है जो निर्णय लिए जा रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने सीधा सीधा इशारा किया, नाम तो नहीं लिया, सीधा सीधा इशारा किया है बृजभूषण शरण पर। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं बाहर से दखल अंदाजी हो रही है, और जो लोग नहीं है फेडरेशन में उनकी भी छाप नजर आ रही है यहाँ पे। कैसे उनकी छाप नजर आ रही? एक उनके ऊपर जो हमारे आरोप लगा है कि हमको लेटर मिला उसमें कि कार्यालय उनके घर से चल रहा है, तो अभी 2 दिन हमारी फेडरेशन बनी हुई, हम लोग किराए का खोज रहे हैं, स्पोर्ट मिनिस्ट्री हमें ऑफिस उपलब्ध करा दे, हम अभी तुरंत वहाँ शिफ्ट कर लेंगे, कल के कल कहीं भी दिलवा दे, तुरंत शिफ्ट सरकार से हम कहेंगे कि हमें कहीं ऑफिस मुहैया करा दी जाए। बाकी वो अपने तरफ से खोज रहे हैं, ऑफिस मिलते ही हम उसको शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा, ऑफिस आप शिफ्ट करेंगे, वो तो एक बात हुई, चलिए आप कह रहे हो ऑफिस नहीं हो आप शिफ्ट करेंगे,
दूसरी बात यह है कि आपने जी नेशनल एक तो अनाउंस जी किया ही जल्दबाजी जी में, क्योंकि आपने वो नोटिस नहीं दिया। दूसरा, आपने गोंडा में ही किया, जो ब्रिजभूषण शरण की कंस्टिट्यूएंसी है। आपको कोई और जगह नहीं मिली पूरे इंडिया में वहां पर कराने की नेशनल? वो सबकी सहमति से हमने किया। 24 स्टेट्स के डेलीगेट जो आए थे, सबकी सहमति से हमने किया है। वो मेरा खुद का निर्णय नहीं है और ना ही वो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का निर्णय है। नहीं तो उनका फिर कोई लोग तो इंटरफियरेंस ये लोग WFI में नहीं है। लोग अच्छा लोग लोग कौन कह रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग का ये कहना है, अगर आप पहलवान कह रहे इतने हैं, अब तो खुश हो गए स्पोर्ट्स थे पूरे मिनिस्ट्री कह देश रहे के। हैं। नहीं संजय जी, अब तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह हाँ रही है, अब तो लोग ही नहीं कह रहे। मिनिस्ट्री की बात को भी आप गंभीरता से नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि दखल अंदाजी है। नहीं, गंभीर नहीं, मिनिस्ट्री ने कहीं लेटर में नहीं लिखा है कि उनकी दखल अंदाजी है। नहीं, उन्होंने कहा है ना, जिस शख्स के खिलाफ संगीन आरोप लगे हुए मिनिस्ट्री हैं, कहीं ना कहीं उनकी छाप यहाँ पे नजर आ रही है। सीधी सीधी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा, लेकिन ये तो सीधा सीधा इशारा उनकी तरफ है ना। वो तो किसी को भी समझ आएगा जो रेसलिंग फेडरेशन के मुद्दे पर ध्यान दे रहा है पिछले कुछ समय से। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के उस पर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं, कुछ ही लोग कह रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यहाँ पर कह रही है उनकी दखल अंदाजी है, उस पर क्या कहेंगे? हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हम लोग अपना पक्ष स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास हमारी अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ अपना पक्ष रखेंगे, उनको अपनी बात बताएंगे, उनसे बात करेंगे इसके लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण की कोई दखल अंदाजी नहीं है। ये जो 24 स्टेट के जो प्रतिनिधित्व आए थे, उन्होंने निर्णय लिया है। मुझे एक चीज ये बताएं, जब आप जीते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन, उसके बाद ब्रिजभूषण शरण बाहर आते हैं, उनके गले में मालाएं पहनाई गई हैं, वो पोस्टर लेके आते हैं, दबदबा था, दबदबा नहीं है। इलेक्शन के बाद वो मीडिया से बात करते हैं। अब इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि उनकी अभी भी कहीं ना कहीं छाप है इस रेसलिंग फेडरेशन में? नहीं, 21 तारीख के बाद का उनका नहीं कुछ है। ये दबदबा, ये सब कार्यकर्ता वगैरह जोश में हल्ला किए, खत्म हुआ अब दबदबा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं वो दबदबा सिर्फ वो 2 दिन पहले तक था, अब नहीं है। अब आपने पूरी तरह से कमान संभाल ली। नहीं जी, बिल्कुल, हाँ। अच्छा, चलिए, वो 2 दिन तक था और आपका कहना है कि 2 दिन के बाद आपने पूरी तरह से उसकी कमान संभाल ली है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चलिए आखिर में, आप जाते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास, अपना पक्ष रखते हैं। फर्ज कीजिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अड़ा रहता है, जो उन्होंने अभी फैसला किया, आपको सस्पेंडेड रखता है, आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि पिछले जितने भी ऐसे मुद्दे हुए हैं, जब भी इस तरह के विवाद हुए हैं, जो फेडरेशन में हुए हैं, वो इस मुद्दे को कोर्ट तक लेके गई है। क्या वो आपका अगला कदम होगा अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आपकी बात नहीं सुनती, आपके पक्ष को नहीं मानती? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चुनाव हुआ है और संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। मुझे 40 मत मिला है और मैं जीत करके आया हूं। और उसके बाद ये आरोप लगा देना कि ब्रिजभूषण सिंह का मैं करीबी हूं, उनका रिश्तेदार हूं, उनका बिजनेस पार्टनर हूं, इस पर भी मुझे आपत्ति है। करीबी की बात है, दोस्त की बात है, मित्र की बात है, तो वो हमारे हैं, क्योंकि मैं 2008 में ही बनारस कुश्ती संघ का अध्यक्ष था। 2009 में ब्रिजभूषण शरण सिंह जी उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। उसके बाद हम बनारस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, इसकी वजह से हम उत्तर प्रदेश की कमेटी में गए। उसके बाद WFI की भी कमेटी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम आए। तो काम हम कुश्ती के लिए करते आ रहे हैं, तो उसके लिए उनसे बातचीत होगी ही, मित्र हैं ही, दोस्त हैं ही, निकटता रहेगी ही। और जहाँ तक रिश्तेदारी की बात है, तो वो राजपूत समाज से आते हैं, मैं भूमिहार समाज से आता हूँ, तो रिश्तेदारी मेरी उनसे कोई नहीं है, मित्रता है, दोस्ती है, ये सब चीज़ है। अब वो कुश्ती से जब उन्होंने संन्यास ले लिया, उनके पास अपने बहुत से काम, अपने काम को वो देखेंगे। तो उधर साक्षी मलिक जी ने भी संन्यास ले लिया है। तो जिन दोनों लोगों के बीच में विवाद था, उन दोनों लोगों ने संन्यास ले लिया। तो मेरी दोनों लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब कुश्ती को सुचारू रूप से चलने दें और बच्चों का भविष्य न खराब हो, क्योंकि नेशनल वो ओलंपिक ईयर है, ट्रायल करानी है। पिछली ओलंपिक में अभी तक हम लोग के 5 बॉडी वेट क्वालिफाई कर चुके थे इस डेट तक, और इस साल अभी तक 1 बॉडी वेट क्वालिफाई किया है। ओलंपिक में हमारे देश की जनता को सबसे ज्यादा पदक की उम्मीद कुश्ती से ही रहती है। तो और मैं मोदी जी के क्षेत्र का हूं जी।
नहीं, वो आपसे मैं सहमत हूँ। आपने बता दिया कि आपके जो आपका इस वक्त मोटिव है, जो आप करना चाहते हैं, वो है रेसलर्स का भला। उस पर एक और विवाद कभी और हम करेंगे, लेकिन मैं आपसे जाते जाते वही सवाल दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपका पक्ष नहीं सुनती है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, अड़े रहते हैं अपने फैसले पे, क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल, हम लीगल लीगल राय लेंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के मिलने के बाद हम लीगल राय लेंगे। लीगल राय जो भी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के सरकार ही गई थी सुप्रीम कोर्ट, जिसके आदेश पे चुनाव, एडहॉक कमेटी ही गई थी जिसके आदेश पे चुनाव हुआ। तो हम जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे, हम लीगल राय लेकर के जाएंगे। लेकिन पहले मैं मोदी जी से और इनसे आग्रह करूंगा कि ओलंपिक ईयर है और इसको खेल का नुकसान न होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। ये है संजय सिंह, जो कुछ घंटे पहले तक जरूर अध्यक्ष थे रेसलिंग धन्यवाद। फेडरेशन ऑफ इंडिया के, लेकिन फिलहाल वो बॉडी सस्पेंड कर दी गई है। बड़ी जो खबर है जो इन्होंने अभी अभी कही है, एक चीज तो ये उन्होंने कही है, अपना पक्ष रखा है, कहा है कि हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी वहां बैठी थी और सारे जो भी स्टेट एसोसिएशन ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वो अंडर 15 अंडर 20 ट्रायल्स होने चाहिए। दूसरा, उनका कहना है कोई भी और जगह तैयार नहीं थी, इसलिए गोंडा में उनको करवाना पड़ा। तीसरा, उन्होंने कहा बृजभूषण शरण की दखलंदाजी थी, लेकिन 2 दिन पहले तक थी, अब वो पूरी तरह से कमान संभाल चुके हैं रेसलिंग फेडरेशन की। ये तीसरी बात है। चौथी बहुत अहम बात उन्होंने कही, वो ये कि at the moment he has decided to go to the court in case the sports ministry does not pay heed to their argument, where they say that at heart of this entire matter they have the best interest of wrestling in mind, so they will go to the sports ministry hoping that the sports ministry will listen to them. But in case it does not, they will go to court. That's exactly what Sanjay Singh has said. This in fact was an exclusive, the first time Sanjay Singh, the newly elected president of the Wrestling Federation of India, has spoken to the media. Okay, the big story that we're telling you right now, we mentioned right at the start of the broadcast, was that Brijbhushan Sharan, the former president, is going to be meeting Amit Shah, the home minister. But now what we are telling you are some inside details of what really happened behind the scenes and what really led to the suspension of the Wrestling Federation of India. Those details are coming up on your screens and we will be telling you exactly what had happened. JP Nadda, the president of BJP, called up Brijbhushan late on Saturday. And in that call, all of this was discussed. Brijbhushan was told about the impending issues that the Wrestling Federation of India are facing at the moment. So in that sense, he was forewarned as to the steps that the sports ministry would be taking. And that's exactly why JP Nadda had called him. It is believed that Brijbhushan, who's won elections on a BJP ticket for 5 consecutive times, is in that sense shares a close proximity with Mr. JP Nadda, and he was informed well in advance that there will be a suspension of the Wrestling Federation of India. That's the inside details that we're telling you about what really happened at that time. Yogeshwar Dutt, former Olympic medalist, wrestler of repute, joins us live on India Today. योगेश्वर जी, सबसे पहले तो आप इस चीज पे बताइए जो संजय सिंह ने कहा कि बृजभूषण जो है उनका अब कहीं भी कोई लेना देना नहीं है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, भले ही वो संजय सिंह के दोस्त हो, लेकिन फिलहाल संजय सिंह ही प्रेसिडेंट है। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है ना कि बृजभूषण शरण की कोई भी छाप, किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? आप उनकी बात पर यकीन करते हैं जब वो कहते हैं बृजभूषण शरण का कोई लेना देना नहीं है? सभी को नमस्कार। देखिए, संजय सिंह जी और बृजभूषण के क्या रिश्ते हैं, कितनी दोस्ती है, उनके क्या संबंध है, आपसी भाईचारा क्या है, मुझे उस बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखना। मैं बस सिर्फ कुश्ती की बात करूंगा। 21 तारीख को चुनाव हुए थे, नई फेडरेशन का गठन हुआ था, जिसमें दोनों दड़ों के लोग हैं। अगर संजय सिंह बृजभूषण सिंह के आदमी हैं, अध्यक्ष हैं, तो प्रेमचंद लोचक जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, IRS ऑफिसर हैं, वो नाम पहलवानों की तरफ से दिया गया था।
देवेंद्र काद्यान है जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी पहलवान की तरफ से नाम था। और जो लोग हैं वो ब्रजभूषण के खेमे के, मतलब 14-15 लोगों में 2 नाम पहलवानों द्वारा दिए गए थे। मतलब जो नाम दिए गए उनमें 2 लोग ये भी हैं। 2 दिन पहले चुनाव हुए थे, उसके बाद फिर नेशनल रखा गया। तो मैं सिर्फ एक ही बात की बात करूंगा पहलवानों के ऊपर। पिछले 1 साल से हमारे जूनियर पहलवान बड़ी दुविधा में थे, और आज फिर बड़ी दुविधा बड़ी स्थिति हुई है। दिल्ली में स्टेट चैंपियनशिप चली हुई थी, हरियाणा में हिसार में स्टेट चैंपियनशिप चली हुई थी। बच्चे अंडर 15 और अंडर 20 वाले बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल के लिए। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप एक बार उन बच्चों की तरफ देखिए। नेशनल नंदनी नगर में था, कहाँ था, वो जगह चेंज भी हो सकती थी। उस तरीके की कोई दिक्कत है तो वो इन्होंने खुद देखना चाहिए था। फेडरेशन तो नहीं बनी थी कि भाई हमें इसमें जरूर देखना चाहिए कि हम नेशनल कहाँ करवाएं। पर वो जो जगह की इन्होंने बताई वो इनके भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। पर आप उन बच्चों का भविष्य देखिए जो पूरे साल नहीं नेशनल नहीं योगेश्वर जी, हुआ। मैं अगर यहाँ बच्चों पे की तरफ नेशनल से ही होता आपसे तो बात कुछ करता हूँ। बच्चों। नहीं, मैं बच्चों के पक्ष में देखता हूँ, मैं बच्चों की तरफ से बात करता हूँ। चलिए आपका मैं ये पॉइंट मानता हूँ कि देखिए बच्चों के लिए जरूरी था जिनके नेशनल नहीं तो हुए पूरी बात तो काफी सुन समय से। लीजिए तो यार, पूरी बात तो सुन लीजिए, बीच में क्यों बोल रहे हो आप। ये बच्चे नहीं, को मैं मेडल आते, सर्टिफिकेट मिलते, कहीं नौकरी में कहीं एडमिशन में काम आता। तो मैं एक ही मेरी ये है कि भाई बच्चों का इसमें, हमारे तो जूनियर पहलवान वो पीछे हैं। फेडरेशन कोई बने या 10 कोई बने, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस यही है कि जो कुश्ती लगातार 4 ओलंपिक में मेडल जीती है, इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि जो अभी अगले साल, अगला क्या, अभी ये दिसंबर है, अभी कुछ दिन बाद जनवरी स्टार्ट हो जाए 2024, पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में सारे देश के खिलाड़ी लगे हुए हैं, पहलवान भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। पर ये जो स्थिति है, ये पहलवानों के लिए बड़े दुर्भाग्य की और खासकर कुश्ती जगत के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुश्ती अपने असली पटड़ी पे नहीं आई है। और क्या पता कितना समय उसके लिए लगेगा और कितने दिनों तक हमारे पहलवानों को ये बुरे दिन देखने पड़ेंगे। मैं तो नहीं, मैं कहता हूँ कि आपकी जल्दी बात जल्दी से कोई भी सहमत बने हूँ अंदर। योगेश्वर जी। मैं इसलिए आपको टोक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 5 मिनट है, मैं इसलिए आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं पहलवानों की तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप, मैं मान गया आपके पॉइंट से कि भाई पहलवानों की सबसे पहले आपको पक्ष देखना चाहिए, जूनियर पहलवानों का पक्ष में देख रहा हूँ कि होने चाहिए था। मेरा सीधा सीधा सवाल ये है, तो अभी भी तो स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अभी भी जो बैठे हैं, रेसलिंग फेडरेशन सस्पेंड हो गई है, कौन है जिम्मेदार? नई जो कमेटी बनी थी, जो उन्होंने करे, जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पॉइंट आउट कर रही है, आपने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई, जो पुराने प्रेसिडेंट है उनका भी अभी भी छाप नजर आ रही है। क्या वो जिम्मेदार है या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फिर जिम्मेदार है क्योंकि सब कुछ पटरी पे आ रहा था, उन्होंने सस्पेंड कर दिया? कौन है जिम्मेदार कि रेसलर्स, जो देखिए जूनियर रेसलर्स है, वो नहीं खेल पा रहे? देखिए स्पोर्ट्स कोड में क्या प्रावधान, क्या चीजें हैं, ये है। और अभी आपने बता कि 15 दिन पहले ये चीजें देनी होती हैं, तो 15 दिन का समय था ही नहीं। इसका मतलब तो नेशनल होना ही नहीं चाहिए था ये इस साल, अगले साल नेशनल होती है। और फिर कुछ हर मतलब जो 14-15 साल का बच्चा 16 साल जो हो जाता है, अगले साल वो का कोई मतलब ये साल जाता, 20 साल का बच्चा 21 साल का हो जाता, वो दोनों चीजें चली जाती। तो वो अगर आप वो चीज देखोगे कि भाई हम स्पोर्ट्स कोड के माध्यम जो तहत वो चीजें आती है कि 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए, उसके बाद ये चीजें हैं, तो वो चीज फिर तो नेशनल नहीं होता। पर मेरा ये मानना है कि जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं, जो जिन चीजों की भाई मेरे को बुलाया नहीं गया, मेरे से बात नहीं की, तो वो बातचीत जरूर करनी चाहिए थी। हाँ, मैं ये है कि अगर मिल बैठ के चीजें बातें होती और नेशनल हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अगर आप देखो कि 15 दिन पहले नोटिस निकलेगा, उसके बाद होगा, फिर तो 15 दिन तो साल में बचे ही नहीं। आज कितनी तारीख, आज 24 तारीख है। 1 हफ्ते का टाइम दे तब भी नेशनल नहीं हो सकता था। 28-29 तारीख का जो नेशनल रखा था। हाँ, ये पॉइंट नोट करने की बात है कि भाई ये जो चीजें बोली कि नंदी नगर में नेशनल क्यों हुआ, तो उसके बारे में संजय सिंह ने अपनी राय रख दी है। पर मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि जितनी जल्दी इस दुविधा से निकले, तो दोनों ही पहलवानों का भविष्य बड़े अंधकार में है। कोई टूर्नामेंट तो नहीं है, कोई इंडिया पूरे साल कैंप नहीं लगा है। अब ये नेशनल जहां भी थे, तो अगर इतना ही वो तो नेशनल चेंज भी कहीं और भी हो सकता था। पूरी बॉडी जो नई बॉडी बनी है उसको फिर से सस्पेंड कर दिया गया है। अब कब तक ये बहाल होगी मेरे को नहीं पता, पर हम तो फिर भी यही चाहेंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी पहलवानों का भविष्य, जूनियर पहलवानों का भविष्य खतरे में है, तो इसके लिए जल्दी से कोई रास्ता निकले जिससे हमारे पहलवान एक फ्री माइंड से बातचीत कर सके। और ये दुविधा तो ऐसे चलती रहेगी, क्योंकि अगर आप बॉडी की बात देखेंगे, सस्पेंड हुई है, बहाल तो होगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर किस तरीके से वो चीजें प्रक्रिया स्टार्ट होगी। क्योंकि अगर आप बिल्कुल रद्द करते हो, नए से चुनाव करवाते हो, तो अलग बात है, फिर भी वही चीजें होंगी कि फिर आप स्टेट बॉडी को कैसे खत्म कर दोगे। तो तो काफी आप कह कुछ रहे हैं समस्याएं हैं, जल्दबाजी हुई है उसका बैठ के उसको पूरा स्पोर्ट्स? विचार विमर्श करके उस पर चीजें बातें होनी चाहिए।
तो आपको लगता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है निर्णय लेने में? उन्होंने देखा नहीं कि इस साल नेशनल नहीं हो सकते? देखिए, मैं वो जल्दबाजी में पूरी उन्होंने सोच विचार के पूरी ये दो सब चीजें देखी होगी, हमसे ज्यादा समझदार लोग वहां पे बैठे हैं, वो क्या कुछ चीजें करनी चाहिए, तो उनका वो अपनी राय है। मैंने अपने पक्ष रखा है कि भाई ये नेशनल अगर हो जाता तो बच्चों को सर्टिफिकेट मिलते, मेडल मिलते, उनको टूर्नामेंट मिलता, उनको कहीं वो कहीं नौकरी में काम आते, कहीं कहीं एडमिशन के लिए काम आते, और एक हौसला बढ़ता होगा। ये लगता है कि भाई कुछ चीजें हुई हैं, पर चलो ये बुरा टाइम है, देखो कितने दिन में कब तक चलता है, कब तक खत्म होता है। ये हमारी कुश्ती के लिए ग्रहण लगा हुआ है, भारतीय कुश्ती को ग्रहण लगा हुआ है, देखो कब तक हटता है ये। योगेश्वर जी, आखिरी में जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको लगता है वो सही था? क्योंकि ये भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है बृजभूषण शरण को वहां पर आना, उनके खिलाफ चार्जेस हैं, उनको क्या आना चाहिए था इलेक्शन के बाद? उनके गले में वो मालाएं लटकी हुई हैं, वो घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं दबदबा था, दबदबा रहेगा, क्या उन्हें ये करना चाहिए था? क्या ये नहीं गया इस नई फेडरेशन के खिलाफ? देखिए, चीजें बिल्कुल मैं मानता हूँ गई हैं, पर आप बताइए, अगर किसी के गुट का बनेगा तो लोग जाते हैं, अगर आपके कोई गुट का, आपकी पार्टी का कोई, मतलब जो आपका आपने अपनी तरफ से कोई उठाया हुआ है, वो होता है, ये चीजें होती हैं, इसमें ये नहीं है। फिर उनको देखना चाहिए था कि भाई अगर ये आरोप लगे हैं तो इस तरीके की बातें होंगी तो नहीं जाना चाहिए। वो मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, पर ये चीजें तो होती, ये खुले मिले, नहीं तो फिर बंद कमरे में मिलते हैं। ये चीजें आप नहीं झुठला सकते कि भाई उनके रिश्ते नहीं है, रिश्ते हैं उनके और आगे भी रहेंगे। पर ये है कि भाई ये जो चीजें इतना वो चीजें हुई हैं, जिस तरीके की दबदबे वाली बातें हैं, तो अगर ये ना होती तो अच्छा था, ये इसमें इतना थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल नहीं होता। चलिए योगेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और अपना पक्ष रखा, और जैसे आपने बताया कि आप चाहते हैं कि भाई खिलाड़ियों का भला हो, अंत में वही होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे, योगेश्वर दत्त speaking live and exclusively on our program. And one thing that is very common from anyone that we speak to on this matter, they say that we must look after the wrestlers. But is that lip service? Is anyone really thinking of the wrestlers? Because all you see from everyone who's trying to contest the election is to look at things that will benefit them. Everyone says that, former players say that, the administrators say that. End of the day, that status quo remains. The fact of the matter is, the Wrestling Federation of India has been suspended, and the Wrestling Federation of India remains suspended from the international body. I'll tell you what the big repercussions of that will be. Paris Olympics aren't too far away. If things remain as they are and there is no resolution, Indian wrestlers will have to fight under a neutral flag. They cannot participate under the Indian flag. Hoping for a quick resolution as a sports fan and as someone who would want the wrestlers to benefit the most, because at the end of the day, sportsmen need to be put first. We're completely out of time on this special that we were bringing to you live, Dangal for Justice, a twist in the tail, the new Wrestling Federation suspended. Many would say it's a sort of a master stroke from the government of India, especially the sports ministry. Do share your thoughts as to what you think. This is a story that we'll continue to follow. मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।